السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ آج بات کریں گے جی ڈاکٹر فیصل کے گھر میں آئی لکشمی۔ اس کے بعد بات ہوگی اقرا کے نئے کانٹینٹ کا گھر میں شاندار ویلکم، اور عریب صاحب کی تو چاندی ہو گئی، لوٹری نکل آئی یا بھاگ جاگ گئے۔ ٹھیک ہے، اس پہ بھی بات ہوگی اور بات کریں گے کہ ڈاکٹر فیصل کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں دیا۔ بے شک اللہ رب العزت کی ذات بہتر جانتی ہوتی ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا بہتر ہے، اور وہ اس کو جس سے چاہے بیٹیاں دے، بیٹے دے، جس سے چاہے دونوں میں سے ایک چیز دے، جس سے چاہے رزق کی فراوانی عطا فرمائے اور جسے چاہے تنگی عطا فرمائے۔ بے شک یہ سب تقسیم جو ہے میرے رب کی ہے، وہ جسے چاہے جو دے۔ یہ دنیا تو ہے ہی ایک آزمائش کی جگہ، اور یہاں پہ ہم صرف آزمائش کے لیے ہی آئے، اور یہ ایک امتحان گاہ ہے، اور اگر ہم امتحان میں پورے اترتے ہیں تو بے شک اگر ہم سرخرو ہوتے ہیں تو آخرت میں جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین ہوگی، جنت کی صورت میں، جہاں نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ وہاں پہ کسی کو اس چیز کی ٹینشن ہوگی کہ فلاں نے مجھ سے بہتر کپڑے پہنے یا فلاں نے مجھ سے بہتر کھا لیا۔ یعنی کہ انسان ہر غم سے آزاد ہوگا، ہر فکر سے آزاد ہوگا، اور یہ انسان کے اندر حس ہی نہیں ہوگی کہ مطلب اس کے اندر یہ چیز ہی نہیں ہوگی کہ فلاں کا مجھ سے زیادہ جنت میں بڑا محل ہے، بڑے خوبصورت وہ کپڑے پہنتا ہے۔ اس چیز سے انسان کو اللہ تعالیٰ بالکل وہ مطلب کہ دنیا جس طرح ہم دنیا میں سوچتے ہیں نا کہ فلاں کا اچھا گھر ہے، فلاں کے کپڑے، تو آخرت میں یہ جنت میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو خوش نصیب ہیں بے شک، اور وہی لوگ جنت کے حقدار ٹھہرائے جائیں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی میں کمپرومائز کیے، قربانیاں دیں۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب کے ہاں بے شک اللہ کی عطا ہے، جیسے میں نے کہا بیٹا نہیں ہوا، لیکن میں کہتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا کے روپ میں ایک دوسرا جنم ہوا ہے ان کی بیٹے کی صورت میں، عریب صاحب۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے کیوں کہا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ میں سب جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں نا ان کو میں اسپیشل یہ کہتی ہوں، ویسے تو ہر ایک کے لیے یہ میسج ہوتا ہے، میرے خود کے لیے بھی ہوتا ہے کہ بیٹیاں بہت ہی پیاری چیز ہوتی ہیں، بہت سینسٹیو ہوتی ہیں، شہزادیاں ہوتی ہیں، اور یہ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، اور بے شک اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اسی کو ہی بیٹیوں کی نعمت عطا فرماتا ہے، رحمت عطا فرماتا ہے، تو ان کو بڑا سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ تو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انہوں نے 2 انگلیاں اٹھا کے اشارہ کیا اور کہا کہ جو 2 بیٹیوں کی پرورش اچھی کرے گا وہ جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ تو آپ کے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جس نے ایک بیٹی کی پرورش اچھی کی، اسے دین کا علم سکھایا، اچھے برے کی تمیز سکھائی، اور اسے نیکی کی رستے پہ چلنا سکھایا، بے شک وہ جنت کا حقدار ہے، اور وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی کا واقعہ ہے، جو ایک بچی بیچاری انسٹاگرام پہ وہ ایکٹیو تھی، ٹک ٹاک پہ، وہ اس کو ایک لڑکا گھر آ کے اس کا مرڈر کر کے گیا۔ اس طرح کے آئے روز واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور بھی بڑے اس طرح کے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ ابھی حمیرہ اصغر کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، اور بھی دیگر تو معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جی ڈاکٹر فیصل صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں سے نوازا، اور انہیں بہت اس چیز کا دکھ تھا۔ ان کی جو وائف ہے انہوں نے بتایا تھا، جس دن اقرا کا میٹ اپ تھا، تو وہ بڑی مطلب خوش ہو رہی تھی کہ میری بچی کو اتنے پسند کرتے ہیں لوگ، اتنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا جب میرے یہاں بچیاں ہوتی تھیں تو میرے خاندان والے جو ہے نا بڑا وہ مطلب کہ ہمیں اس طرح فیل کرواتے تھے کہ آپ کہاں بیٹا نہیں ہوا، بیٹیاں ہو رہی ہیں، اور اتنی بیٹیوں کی تم ماں بن گئی ہو، اور بڑا بیٹیوں کی وجہ سے مجھے سہنا پڑا، برداشت کرنا پڑا، باتیں سننا پڑی۔ تو میں تو ان سے یہ کہوں گی کہ یہ تو دنیا ہے، دنیا والے ہیں، دنیا والے تو باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ بیٹی اس کو عطا کرتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ تو آپ نے دنیا کی باتوں کو کیوں اتنا سیریس لیا؟ آپ دنیا کی باتوں سے اتنی ہرٹ کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہ دنیا والے نے تو ہمیں کوئی صلہ نہیں دینا نا، صلہ تو ہمیں ملنا ہے اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے۔ اگر ہم نے اپنی بچیوں کی حفاظت کر لی اور ان کو اچھے سے پال پوس کے بڑا کر لیا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ آخرت میں اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ لیکن آپ کی بچیاں جب سوشل میڈیا کی زینت بنی، اور آپ کی بچیوں نے ایک ایسا کانٹینٹ سوشل میڈیا پہ متعارف کروایا
जो नहायत बेहुदा किस्म का था, और इससे पहले किसी ने भी इस तरह का कंटेंट सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान में पब्लिक नहीं किया था। आपकी बच्चियाँ सबसे पहले इस तरह का कंटेंट लेके आई जो हमारे माशरे के हिसाब से, हमारे मज़हब के हिसाब से बिल्कुल भी गैर अखलाकी है, ठीक है। उसको बिल्कुल भी हम सपोर्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं जो जिनका लाइफस्टाइल आपके बच्चों की तरह ही होता है, ठीक है। हम भी कोई दूध के धुले नहीं हैं, इंसान हैं, गुनाहगार हैं, सब गुनाह करते हैं, लेकिन जब चीज़ पब्लिक हो जाती है ना, तो फिर आप अपने गुनाहों में दूसरों को गवाह जो है ना, गवाह के तौर पे शामिल कर लेते हैं। तो आपको इतना फ़ख्र हुआ जब आपकी बेटियां सोशल मीडिया पे तरह तरह का कंटेंट अजीबोगरीब किस्म का डाल कर, जिसके बाद आप ही की तरह की, आपकी बेटियों की तरह का कंटेंट और भी बहुत से लोग लेके आए, यानी कि आप दूसरों के उस्ताद भी बने, दूसरों के गंदे काम में रहनुमाई भी की आप लोगों ने। और जिसने भी आपके नक्शे कदम पर चल के इस तरह का काम किया, उन सब के गुनाहों का भी अल्लाह माफ़ करे, कहीं ना कहीं आप भी उसके हिस्सेदार हैं, ठीक है। तो आपकी बेटियां ने सोशल मीडिया को चूज़ किया, आप कामयाब हो गए, आपको पैसा कमाया, आपने इतना पैसा कमाया, फिर उन्हीं रिश्तेदारों को आपने जूते की नोक पे रखा, उनको सुनाई, उनको कहा कि भाई अब देखो, तुम लोग तो कहते थे हमारे यहाँ बेटियाँ हुई हैं, देखो हमारी बेटियों ने हमारा नाम कितना रोशन किया दुनिया में। तो ये दुनिया में नाम रोशन करना तो ना हुआ ना। आपकी बेटियां 5 हैं, लोगों की तो 10-10 होती हैं, 7-7 होती हैं, तो वो 7-7 बेटियों को भी छुपा के रखते हैं, सोशल मीडिया की जीनत नहीं बनाते, और अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखते हैं, ठीक है। और वो भी कोई इतने अमीर नहीं होते, बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि हमारी बेटियां इस तरह का कंटेंट पब्लिक करके सोशल मीडिया पे नाम बनाएं, और जब पैसा आएगा तो हम अपने ख़ानदान वालों को जलाएंगे और उनको कहेंगे कि आपने तो कहा था ना बेटियां हुई हैं, तो देखें बेटियों ने हमारा नाम कितना रोशन किया है, ठीक है। तो बहरहाल जी, नया कंटेंट डॉक्टर फैसल के, हाँ, तो 5 की 5 लक्ष्मियाँ ही हैं जो अंकल जी को कमा कमा के इतना दे रहे हैं कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टियाँ इतनी बना ली हैं कि अब उनसे इदारे जो हैं वो उनको बार बार बुला रहे हैं कि आए, आपसे पूछ गछ करनी है, ठीक है। तो अफसोस होता है कि आपको तो अल्लाह ने इतनी प्यारी बेटियां दी थी और आपने उनको मुलजिम बना दिया। अब इकरा का बार बार नोटिस आ रहे हैं, और इकरा को क्यों थोड़ी सी वो उन्होंने दिया है कि भाई चलें ठीक है कि आप अभी प्रेग्नेंट हैं, बच्ची हुई है आपकी, तो इसलिए थोड़ा सा उन्होंने रियायत दी है इदारों ने। तो कितनी दुख की बात है ना डॉक्टर फैसल साहब, आप अपनी बेटियों के साथ झूठ पर मबनी कंटेंट बनाने में फ़ख्र महसूस करते हैं, लोगों को चीट करते हैं, धोखा देते हैं, और इस पे भी आपको फ़ख्र होता है क्योंकि आप इसके ज़रिए कमाते हैं। तो आप तो ये कहते होंगे ना कि आजकल दुनिया में यही हो रहा है, तो हम क्यों ना करें, हम कोई अनोखा काम कर रहे हैं, सब तो यही कर रहे हैं, सब तो एक दूसरे को लूट रहे हैं ना, तो हम क्यों ना लूटें। तो बाज़ दफ़ा अल्लाह माफ़ करे, किसी की बद्दुआ भी लग जाती है। जैसे उस डीलर को आपने सारा दिन फिराया, सारा दिन उसको आपने यूज़ किया, इस्तेमाल किया कि हमने घर ख़रीदना है, और जब बात फ़ाइनल हुई तो आपने कह दिया हम सोच के बताएंगे। कंटेंट आपने बनाना था, बना लिया। उस गरीब ने क्या क्या ख्वाब सोच लिए होंगे कि चले एक घर का मेरे ज़रिए से एक घर का सौदा हो जाएगा, मुझे अच्छा कमीशन मिल जाएगा। सोचे ना, आपने कभी सोचा इस बात पे? और जो आपकी बेटी बैठ के जुआ ऐप्स को प्रमोट करती रही, आपने तो उसमें से करोड़ों कमाए होंगे, बेशक करोड़ों कमाए होंगे, इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, इस तरह की ऐप्स को प्रमोट करने का ये करोड़ों में लेते हैं, लाखों में नहीं लेते। तो क्या आपको उन लोगों की बद्दुआओं से डर नहीं लगता जिन्होंने अपने खून पसीने के पैसे उन ऐप्स में इन्वेस्ट किए और फिर उनको नुकसान हुआ? अब आपके घर एक और कंटेंट का शानदार वेलकम हुआ, क्योंकि अब आपके कंटेंट में इजाफा हो गया है। एक और लक्ष्मी जो है, बाबरकत लक्ष्मी, अल्लाह ताला उस बच्ची के नसीब अच्छे करे, आपके घर में आ गई है, और आप खूब जो है ना दिल लगा के उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, उस कंटेंट को कैश करने की भरपूर जो है ना कोशिश जारी है। और अरीब साहब जो हैं, एक ख़ातून से तो पहले लाखों करोड़ों कमा ही रहे थे, अब बेटी की सूरत में एक और इजाफा हो गया घर में कमाई का, ठीक है। अब इसको दिखा दिखा के और कमाएंगे, तो अरीब साहब की तो मौजें हो गई ना, वारे न्यारे हो गए। तो गैरतमंद बाप होता तो बेटी का कंटेंट ना बनाता, अपनी बेटी को सोशल मीडिया से छुपा के रखता, पर नहीं जी, इनका तो घर का इतना कीमती कंटेंट है, भला वो क्यों छुपाएंगे। और वो तो सोशल मीडिया पर्सन है, वो तो अपनी हर चीज़ सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, तो ये क्यों नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे, दिखाएं दिखाएं, आपका पूरा हक है, आपकी बेटी, आप दिखाएं, ठीक है। हम भी अपना फ़र्ज़ अदा करते रहेंगे, जो हमारा फ़र्ज़ है हम वो काम वो कर रहे हैं। दूसरा जी, डॉक्टर फैसल को बेटा तो अल्लाह ताला ने नहीं दिया, इसी में कोई हिकमत होगी, मेरा रब बेहतर जानता है। तो वो अपने बंदों को जो अता फरमाता है, बेशक उसी में उनकी भलाई होती है। तो हमें नहीं पता होता हमारे लिए क्या चीज़ ठीक है, क्या नहीं चीज़। और वैसे ही मैंने कहा ना कि दुनिया में तो इंसान है ही आजमाइश में। तो
और इंसान का काम है सिर्फ अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना और सब्र करना। तो डॉक्टर फैसल के बेटे की सूरत में मैं कहती हूँ कि या डॉक्टर फैसल का ही मैं कहूँगी दूसरा जन्म, वैसे तो एज़ ए मुस्लिम हम दूसरे जन्म तीसरे जन्म पे बिलीव नहीं है, लेकिन एक मैंने वैसे बात की है कि ये भी एक डॉक्टर फैसल का दूसरा रूप है। चलिए दूसरा जन्म नहीं, दूसरा रूप कह लेते हैं। जैसे डॉक्टर साहब खुद है ना खुले दिमाग के, वैसे ही उनको दामाद मिला खुले दिमाग का। पहले डॉक्टर साहब अपनी बेटियों को कैश कर रहे थे, तो अब डॉक्टर साहब के दामाद भी करेंगे। तो दामाद की रूप में डॉक्टर साहब को एक बेटा भी मिल गया अपने जैसा, सेम अपने जैसा। तो डॉक्टर साहब तो बहुत खुश होंगे हैं। तो अल्लाह इनको खुशियाँ मुबारक करे। और मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला उस बच्ची के नसीब अच्छे करे। उस बच्ची को बेचारी को जो अभी इस दुनिया में बिल्कुल फ्रेश आई है, और अभी तो वो इस दुनिया को मतलब थोड़ी देर तो बच्चा बेचारा कुछ दिन एक्सेप्ट भी नहीं करता माँ के पेट से जब बाहर आता है, तो उसके लिए सब कुछ नया होता है। उसको तो पता भी नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कि मुझे मतलब आप जो सजावट कर रहे हैं या आप वेलकम कर रहे हैं, उस मासूम को क्या पता ये सब किस लिए हो रहा है, उसके लिए हो रहा है, उसको तो पता भी नहीं है। उसको क्या पता गुब्बारे लग रहे हैं, कमरा सज रहा है, घर सज रहा है, नहीं। उसके लिए तो अगर आप करते तो आप कोई मतलब कि बच्चों को किसी मदरसे के किसी गरीब के बच्चों को कोई खाने खिला देते, कि खुशी कर लेते कि अल्लाह ने हमें बेटी दी है, खुशियाँ मनाते, गरीबों को खाना खिला देते, दुआ करवा लेते, कोई ख़त्म कुरान ख़वानी को इस तरह का सिलसिला कर लेते, अल्लाह की शुक्र गुजारी कर लेते। सैलाब आया हुआ है, कोई सैलाब ज़दगान में कोई चैरिटी कर देते। इतना अल्लाह ताला ने आपको नवाजा हुआ है। लेकिन मुहर्रम में जूस के डब्बे बांटने के अलावा और इसके अलावा आप कुछ भी नहीं करते हैं ना। अफ्तारी करवा दी रमज़ान में, छोटे छोटे डब्बे पैक करके बांट दिए। तो अल्लाह ने आपको इतना नवाजा हुआ है, किसी को घर बना के दे देते, किसी गरीब को बेचारे को। तो क्या आ जाता आपका है, सवाब का सवाब होता और खुशी की खुशी। तो उस मासूम को नहीं पता कि मुझे कैश किया जा रहा है, मुझे मेरा कंटेंट बनाया जा रहा है। तो कितनी गलत बात है ना। अपने आप में मुझे तो शर्म आ रही है, मुझे सोच के शर्म आ रही है कि एक ऐसा बच्चा जो बेचारे को जिसको पता ही नहीं है कि दुनिया में मैं आ गया हूँ, उस उसको आप कंटेंट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, उसके वेलकम हो रहे हैं क्या शानदार। मतलब आप अ, अल्लाह माफ़। माँ तो मैं कहती हूँ माँ वो होती है ना जो अपने बच्चे के लिए मतलब कि जान ही कुर्बान करती है। और ये कैसे माँ बाप हैं जो अपने ही बच्चियों बेचारियों को, उनकी आखिरत दुनिया तो चलो आप लोगों की बज़ाहिर संवर गई है, आपको लगता है कि संवर गई है, हालांकि संवरी तो नहीं है। इसको हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुद को दिखा के, नुमाइश करके, झूठा सच्चा कंटेंट, झूठ पे मबनी कंटेंट शेयर करके पैसा कमा के जो आपने सहूलियात आप कर रहे हैं एंजॉय, तो अपने आप में भी शर्म नहीं आती होगी आपको। तो कल क़यामत के दिन आप इतने सारे बच्चियों का हिसाब कैसे देंगे डॉक्टर फैसल साहब? क्योंकि पूछ तो होनी है ना, वहाँ पे तो हर एक की पूछ होनी है, सबसे पूछा जाएगा। हमने किसी से नाइंसाफ़ी की, किसी का हमारा औलाद के हकूक़ अदा नहीं किए, या औलाद को सीधे रास्ता नहीं दिखाया, या औलाद को सख्ती से नहीं कहा कि दीन की ऊपर अमल करो, तो फिर पूछ गाछ तो होनी है ना, आपसे भी होनी है, हमसे भी होनी है, सबसे होनी है। तो दुआ तो यही है कि अल्लाह ताला हमें भी हिदायत अता फ़रमाए, आपको भी अता फ़रमाए। और देखें मैंने जैसे पहले कहा गुनहगार तो हम सब हैं, लेकिन जब चीज़ पब्लिक हो जाती है ना, उस पब्लिक को चीज़ को देख के लोग जो है मुतासिर होते हैं और फिर वो भी इसी तरफ राग़िब होते हैं। तो आप लोग क्या एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं कि मतलब बेटियां हैं तो खुश हों, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। बेटियां तो आपको आपका नाम रोशन करेंगी, आपको कमा कमा के देंगी। तो अंकल सॉरी फैसल साहब जो है ना, अंकल ही कहूँगी इनको मैं, फैसल साहब आप एक अजीम शख्स बन सकते थे अगर आप अपनी बेटियों के ज़रिए यूँ दौलत ना कमाते, उनको अपनी कमाई, उनको कमाई का ज़रिया ना बनाते, उनको कैश ना करते। तो इन बेटियों की वजह से आप मतलब कि दुनिया में बेशक अगर थोड़ी सी आजमाइशें आ भी जाती, वैसे तो आप कोई गरीब नहीं थे, आप अच्छा खासा कमाते थे, आप बच्चियों को अच्छी तालीम दिलवा सकते थे, उनको अच्छे रिश्ते उनको मिल जाते अपने घर में, मतलब शादियाँ अच्छी घरों में हो जाती। लेकिन आपने क्या किया? आपने उनको तो क्या देना था, बल्कि आपने उन्हीं को कैश कर लिया। तो आखिरत में कभी अकेले बैठ के अगर मेरी वीडियो देखें या किसी की भी इस तरह की कोई वीडियो देखें जो आपकी इस्लाह करता है, सोचिएगा कि आपने क्या ट्रेंड सेट किया है।
کیا ٹرینڈ سیٹ کیا آپ نے، کبھی سوچیے گا تنہائی میں. چلیے جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، بھی کے لیے اتنی. اللہ حافظ.